So today we'll be starting your subtractive manufacturing process. Right? It will be taking two class. Today we'll be trying to complete the non-conventional, yes, it is traditional part. Right? Then next class we'll be studying about the non-traditional. Okay. So what do you understand by traditional or non-traditional? क्या समझ में आ रहा है? From the name only, anything you can understand? Traditional, non-traditional. Traditional is the old method, right? Non-traditional is the newest, right? Okay. So today we'll be discussing about the traditional one, right? जो कि पहले से हम करते आ रहे हैं, and that is also useful. Those are also useful nowadays, right? आजकल भी हम उसको भी use कर रहे हैं, right? Next class will be discussing about the modern manufacturing processes like non-traditional methods, right? So basically, what is the what is actually subtractive manufacturing method? From the name also you can guess. Subtractive. We need to subtract something, right? We need to remove the material from any workpiece layer by layer, right? जैसे कि तुम अगर वर्कशॉप में किए होंगे, देन वहां पे तुम जो मशीनिंग कर रहे हो, right? So that is the oldest method, right? So we are removing, suppose we are talking about the lathe machine, right? So lathe में काम कर रहे हो आजकल, right? So there is a basically cylindrical workpiece and there is a cutting tool, right? And the cylindrical workpiece is rotating. Then we are feeding or cutting tool perpendicular to the axis of that particular cylinder, right? And we are giving some amount of depth of cut. Then we are moving that particular tool along the length of the workpiece. Getting my point? Whatever I am telling, right? So basically, वहाँ पे एक workpiece है, okay? And this workpiece is rotating. Workpiece is rotating, right? And there is a fixed your cutting tool is there, and cutting tool को हम क्या कर रहे हैं, पहले उसको आगे थोड़ा भेज दे रहे हैं. So that is known as your depth of cut. How much material is to be removed, right? Suppose 1 mm, 2 mm, it can be anything, right? So this movement of the your what cutting tool, that is known as your depth of cut, right? Then after giving any amount of depth of cut, we need to move this particular cutting tool along this particular direction, right? So here you can see there are three types of movement is happening. One is movement of this particular cylinder, okay, that is the rotational motion. Another motion is the motion of this particular cutting tool perpendicular to the axis of the cylinder, right? One is the rotation of the cylinder, okay. Another one is the movement of the cutting tool perpendicular to the cylinder, perpendicular to the axis of the cylinder. Next movement is the movement of this cutting tool along the length of the cylinder, right? So basically in any traditional method we will be getting only three motions will be possible there, right? Like in our lathe machine, okay. Similar to lathe machine, there are number of types of your traditional methods, okay. And basically from the definition you can see, you can understand that manufacturing, that is subtractive method, simply means you need to remove the material from the workpiece layer by layer. एक layer remove कर देंगे, फिर और एक layer remove करेंगे, then next layer, okay. So let us go to the slides. Is it visible? दिखाई दे रहा है या फिर लाइट बंद कर दो? दिखाई दे रहा है सबको? Okay, so here you can see subtractive manufacturing is a process of creating an object by cutting away at a solid block of material until the final product is complete. कोई डाउट है क्या इसमें? जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला है हम वहां से मटेरियल रिमूव करते चलेंगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, मशीनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम ए वर्कपीस टू क्रिएट ए डिजायर्ड शेप एंड साइज, ऑब्वियसली यूजिंग शार्प कटिंग टूल्स. इसमें कोई डाउट? किसको काटना है तो उसको शार्पनिंग करना पड़ेगा, ये हमको पता है, राइट? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग विथ ए रॉ मटेरियल एंड कटिंग अवे अनवांटेड पोर्शंस टू क्रिएट द फाइनल प्रोडक्ट. कोई दिक्कत? पहले हमारे पास एक रॉ मटेरियल होना चाहिए, एंड दोज रॉ मटेरियल्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय सम अदर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, दोज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, राइट? लाइक if I want to produce a rod, right? So those rod will be produced by some other manufacturing methods.
Like in which in which manufacturing method we can produce a rod? We are drawing, right? या फिर extrusion, okay? Any in any of this manufacturing method we can produce that particular workpiece, okay? हमारे पास एक raw material होना चाहिए हम अगर मशीनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो, राइट? तो पहले से हमारे पास एक रॉ मटेरियल होगा, देन अकॉर्डिंग टू our desired shape and size will be removing the extra portions which will be there, right? So basically now it has been divided into two types. Subtractive manufacturing method, it has been divided into two types, two categories. Already I mentioned those. One is your conventional machining, another is your non-conventional machining. या फिर traditional machining, another is your non-traditional machining. Okay, and conventional simply means which were we are using from a long days. पहले से हम यूज करते आ रहे हैं. Okay, so basically what is the difference between conventional and non-conventional is that if we'll be talking about any conventional machining process, in that case you will be having a direct contact in between your workpiece and the cutting tool. Again I am repeating that in case of your conventional machining या फिर traditional machining processes, you will be having a direct contact between the workpiece and the cutting tool. जो भी वर्कपीस मटेरियल होगा उसको अगर हम कुछ भी मशीनिंग करना चाह रहे हैं उसमें हमको कटिंग टूल को डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हम आजकल करते आ रहे हैं. इसको काटना है तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तभी कटेगा, राइट? जैसे कि तुम किसी को भी काटो, राइट? तो डायरेक्ट कांटेक्ट होने से ही तुम्हारा मटेरियल कटेगा. तो इट सिंपली मीन्स दैट योर कटिंग टूल मटेरियल शुड बी हार्डर देन दैट ऑफ द वर्कपीस मटेरियल, राइट? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट करके ही हम काट रहे हैं, तो जो कटिंग टूल मटेरियल हम यूज करेंगे दैट शुड बी हार्डर देन दैट ऑफ द आवर वर्कपीस मटेरियल. सपोज आई वांट टू कट, आई वांट टू डू अ मशीनिंग ऑफ माइल्ड स्टील, राइट? हम माइल्ड स्टील को कोई मशीनिंग करने चाह रहे हैं, देन द कटिंग टूल व्हिच विल बी यूज्ड दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग योर माइल्ड स्टील. माइल्ड स्टील को यूज करके हम माइल्ड स्टील काट नहीं सकते हैं, कुछ उससे हार्ड मटेरियल यूज करेंगे. तो नॉर्मली most of the materials which are using that is of mild steel, right? So to cut mild steel will be using stainless steel, right? या फिर हाई स्टील हाई स्पीड स्टील एक है HSS बोल के, तो उसको यूज करके हम काटेंगे, या फिर कार्बाइड टूल से उसको यूज करके हम काटेंगे, right? Like tungsten carbide. Okay, so these are the harder materials, that is why this is used to cut your mild steel. Obviously, suppose I want to cut tungsten carbide, then again obviously we'll be requiring more hard material to cut tungsten carbide, right? Suppose I am using diamond for that, right? Then to cut diamond, which material I will be using? Because diamond is the hardest, so how can I cut that? So after some reason our conventional machining will be failed, we cannot use to process the workpieces by using your conventional method. Is it clear? Okay. And basically when we are talking about the conventional machining process, if basically you know what is turning, turning क्या है पता है ना, पता है क्या? Okay, the process which you are doing in your lathe, that is your turning, right? एक cylindrical workpiece हमारे पास है, now we are decreasing the diameter of this particular cylinder, so that process is your turning. The reduction of diameter of any cylinder is known as the turning process. And where turning can happen? In case of your lathe. Lathe only we can do the turning process, right? So suppose I am doing turning, I am decreasing the diameter of this particular workpiece. Okay, so how diameter will be reducing? Again I am showing, this is my cutting tool, right? I am giving this much amount of feed, sorry, this much amount of depth of cut, and feed will be in this place, right? Suppose now I am placing over here, right? So this much amount of your material will be removed in the form of chips obviously, right? तो ये लेयर रिमूव हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. आगे मतलब कितना, दैट विल बी डिपेंडेंट. सो सपोज मैं यहाँ तक भेज दिया, मतलब यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा, फिर यहाँ पे भेज दिया तो यहाँ से रिमूव होगा मटेरियल, या फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ी पास नहीं भेजूंगा, मतलब दैट डिस्टेंस, right? So that distance matters for our surface. How much amount of feed we are providing, on that our surface will be dependent.
And as your all the conventional machining processes are the manually operated, so surface finish which will be getting that will be less as compared to the non-conventional. हम क्या करेंगे मैनुअली वहां पे फीड करेंगे, वहां पे कुछ व्हील्स है देखो लेग में कौन कौन काम किया है बता दो, कंप्लीट हो गया तुम्हारा जॉब हो गया ना। ओके हम क्या कर रहे हैं पहले एक बैक का कट दे रहे हैं वहां पे जो क्रॉस साइड वगैरह है। ओके पास पता है ना लेग का क्या क्या है। ओके इधर से हम कुछ घुमाते हैं तो कटिंग टूल आगे जाता है राइट, फिर यहां से हम कुछ घुमाते हैं तो हमारा टोटल सिस्टम इधर जाता है राइट। तो हम ये जो व्हील को जितना घुमाएंगे उसके हिसाब से तुम्हारा जो टूल है मूव करेगा। तो हम एक्चुअली उसको ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए जो एरर आएगा ऑब्वियसली 4। okay, and in case of the non-conventional machining everything will be automated. Okay, will be providing some of the instructions, according to those instructions our machine will be working, so there will be no chance of your human error। human error सिर्फ तुम्हारा प्रोग्रामिंग में ही हो सकता है, अगर प्रोग्रामिंग गलत किए हो then तुम्हारा उसके हिसाब से गलत हो जाएगा राइट। अगर प्रोग्रामिंग सही है then you can get good surface finish, good dimensional application products। okay, let us move further। okay, so what this is the basically classification of your software you can say। first of all we classified this is as to your conventional machining process and non-conventional machining process, it is also called as your traditional and this is also known as your non-traditional। okay, again conventional machining are of different types but we will be focusing on this only, that is your turning which I was discussing about, then milling, then shaping, drilling, grinding and boring right, what are all this we'll be discussing in further slides। then under non-conventional machining processes there is CNC machining, then there is electro discharge machining which is known as your EDM, then electrochemical machining, laser beam machining, electron beam machining, ultrasonic machining, abrasive jet machining, other than this there are also much more। okay, so out of all this we'll be discussing some of them right, again we'll be trying to understand what is the working principle only and what are the basic advantages of this, we'll be not going into very much depth of that, is it clear? okay, moving further, so this is the basically difference between your conventional and non-conventional machining process right, read it out। so in case of a conventional machining process there is a direct contact between the tool and workpiece right, and in case of your non-conventional machining tool are non-conventional technique like laser beam and electric arc right, so basically will be not having any direct contact in between your workpiece and tool, how there is no direct contact and how material is getting removed that will be discussed in the further slides। okay, then cutting tool is always harder than the workpiece, just I have discussed about that right, then tool may not be harder and it may not be physically present, ऐसे भी हो सकता है फिजिकली कोई टूल भी नहीं होगा फिर भी हम मटेरियल रिमूव कर देंगे। ओके, लेकिन इन केस ऑफ योर कन्वेंशनल टूल मस्ट बी प्रेजेंट एंड इट विल बी मस्ट बी हार्डर as compared to the workpiece। then in case of your this particular conventional type tool is less, sorry tool life is less due to high wear, क्योंकि वहां पे रबिंग एक्शन हो रहा है तो टूल जो रिमूव हो जाने की चांस वहां पे ज्यादा है, टूल वियर होने की चांस ज्यादा है। टाइम पे टर्निंग अगर करते करते टर्निंग कर रहे हो तो तुम्हारा वर्कपीस तो वो तो कट कर रहा है लेकिन तुम्हारा वर्कपीस भी थोड़ा सा रिमूव होते चला जाएगा, सॉरी तुम्हारा कटिंग टूल भी थोड़ा सा वियर होते चला जाएगा, सो देयर इज अ चांस ऑफ टूल वियर इन केस ऑफ योर कन्वेंशनल राइट। अगर टूल वियर कर हो गया तो इसको फिर हमको लेके शार्पनिंग करना, जैसे कि इफ यू बी टॉकिंग अबाउट योर पेंसिल को यूज करके तुम लिख रहे हो ओके, तो फिर वो जो वियर हो जाने के बाद अगेन टू डू द शार्पनिंग सेम थिंग ओके, बट obviously there will be tool life more because there is no direct contact, there is no chance of any tool wear, so obviously tool life will be more in case of your non-conventional। next is your generally macroscopic chip formation, okay, in case of your conventional type there will be chip formation, okay, जो भी chip मतलब समझ रहे हो हम कुछ काट रहे हैं तो वहां से मटेरियल रिमूव, सो दैट इज द चिप। ओके, जैसे कि लेयर में काम कर रहे होगे तो वहां से एक लेयर रिमूव होते चला जाएगा,
ओके, यहाँ पे माक्रोस्कोपिकली मतलब बहुत बड़ा बड़ा चिप फॉर्मेशन, बट इन केस ऑफ दैट देयर विल बी माइक्रोस्कोपिकली चिप्स विल बी फॉर्मेटेड। ओके, बहुत छोटे छोटे चिप्स फॉर्मेशन होंगे। ओके, अगर छोटे छोटे चिप्स निकल रहे हैं तो वहां पे सरफेस फिनिश क्या होगा, राइट, इधर आएगा। ओके, सो मटेरियल रिमूवल ऑकर्स विथ और विदाउट चिप फॉर्मेशन। कोई कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग मेथड होंगे जहां पे चिप फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड कोई एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड हो सकते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चिप फॉर्मेशन हो सकता है, राइट। देन नेक्स्ट वन इज योर मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमको फोर्स देना पड़ेगा, right, but in that case we will not requiring any amount of force. In some manufacturing process we will be requiring force, but that is very less as compared to this conventional type, right. So basically in that case it uses different energy like electrical, thermochemical, all this type of energy. Like one manufacturing method we discussed, that we I told there, that is your electron beam machine, right. So somewhere it will be using the electrons to remove the material, right. I think in that particular slide also I told there is laser beam machine, right. So we'll be using laser to remove material, right. So in that case there will be no force will be involved for the removal of any material. Okay, then suitable for all the materials, basically our non-conventional conventional types will be used for all the materials। हर एक मटेरियल को हम किसी भी मटेरियल ले लो उसको तो हम काट ही सकते हैं, राइट। और हमारे पास उससे हार्ड का एक टूल है जिसका कैन बी कट, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट non conventional type। So every manufacturing methods will be having some limitations, right। We cannot use all the materials, या फिर we cannot machine all the materials by using non conventional। किसी भी मटेरियल ले लो सबको हम काट नहीं सकते, उसका कोई कुछ नेगेटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा जिसको हम काट नहीं सकते। Suppose if we will be talking about the electron beam machine, that means there will be some transfer of the electrons, and how electrons will be transferred by providing some to someone is positive and negative। So if I am providing our workpiece as negative can be positive, that simply means workpiece must be conductive। अगर कोई नॉन कंडक्टिव मटेरियल है then that cannot be machined by the help of that particular manufacturing, right। So similar to that there will be some materials which cannot be machined by using your non conventional। कोई दिक्कत। next if cannot be sorry it cannot be used to make a prototype parts very effectively। obviously prototype simply means जिसको एक reference point मान सकते हैं। suppose we were talking about your in case of your casting there was something like pattern, याद है क्या, right। pattern is the exact replica of the final product, right। so first of all if I am preparing that particular pattern by using some conventional method, राइट, तो ऑब्वियसली उनके उसके केस में हमारा डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं होगा, सरफेस फिनिश उतना ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो उसको यूज करके अगर हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे ऑब्वियसली उसका भी ये सब इम्प्लीमेंट रहेंगे, राइट। तो जब भी हम एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो इसको यूज करके और कुछ बनाना होगा तो दैट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ योर नॉन कन्वेंशनल। ओके, इस केस में एटलीस्ट तुम्हारा डायमेंशनल एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश अच्छा होना। कोई दिक्कत। So these are the basic difference between your conventional and non-conventional type। Okay, so after these discussions we are entering into the conventional type, and first machine tool which will be discussing about that is your lathe machine tool। okay, जो कि तुम पढ़े हो। okay, lathe। okay, another I am saying here that is machine tool। okay, and there is something like machine। what is the difference between machine and machine tool? Tools is बोलो बोलो। अगर टूल यूज करेंगे मशीन में तो उसको बोलेंगे मशीन। जो मशीन एक टूल के हिसाब से यूज किया जाएगा उसको बोलेंगे मशीन, राइट। एनी मशीन इज व्हाट विल बी गिविंग समथिंग एंड विल बी अपेंडिंग समथिंग, दैट विल बी मशीन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मशीन? बेसिकली समथिंग इनपुट विल बी गिवन टू द and that input will be converted in terms of output, right। Suppose I am talking about this particular fan, we are giving some input as the electrical energy and we are getting some output that is as a mechanical energy, right, and that mechanical energy is used to rotate the fan blades and it is blowing some air to the room,
right? So basically anything can be called as a machine if some input will be given and accordingly we'll be getting some output, desired output जो हम चाह रहे हैं, right? So that is another machine. And if any machine can be used as a tool to produce something else, कुछ अलग प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए, जिसको हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे क्या, machine tool. So whatever machines will be discussing in this particular course, that can be called as a machine tool, because by using those machines we are producing something else. हम कुछ अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं all those machines को use करके. Okay, so that is why I have written that is your lathe machine tool, right? Okay. So I think you must have seen this particular tool. ये देखे हो, right? So यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, चौक है, राइट? एंड यहाँ पे तुम्हारा ये वाला क्या है, ये तुम्हारा हेड स्टॉक हो गया, ये वाला टेल स्टॉक, राइट? एंड दिस इज योर क्रॉस लाइट एंड दिस इज ब्लेड, ब्लेड ना, bed. So this is the bed over which all these components are mounted, right? So basically, as I have already told you, there are three motions possible. One motion is the rotation of this particular chuck, where our workpiece will be fitted. Another motion, the movement of the cutting tool in the forward or backward, okay, perpendicular to the axis of the cylinder, axis of the workpiece. And third motion is the your parallel to the your axis of this particular cylinder, right? So there are three motions possible in this particular system. And here you can see this is the cutting tool which will be using to do any operation in the circuit lathe. lathe में हम अगर कुछ भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो दिस टाइप का हमारे पास एक कटिंग टूल होगा, right? And this is basically is your single point cutting tool. That means one point will be involved for the cutting action. कटिंग करने के लिए हम एक ही पॉइंट को यूज करेंगे. इसे भी हो सकता है we may be having different number of points for cutting action, but when we are talking about the lathe machine tool, there only one point will be useful for the cutting action. So that is why for turning operation if we are talking about, then single point cutting tool will be, right? And if this is not single point, then there will be multi point cutting. So in any other manufacturing method या फिर manufacturing cutting तुम्हारा machine tools, multi point cutting tools may be used. Like if you have used Aksa, right? Aksa तुम use किया हो, so that is multi point या फिर single multiple, right? So because there are number of points which are involved for the cutting action. कटिंग करने के लिए बहुत सारा पॉइंट्स है जो कि यूज हो रहे हैं, लेकिन हम जो लेथ के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं those are being done by the help of your single point, right? So these many operations can be done in case of your lathe को यूज करके हम इतने सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, but only you have done in case of your lab, that is turning. Okay, तुम क्या किए हो, सिर्फ टर्निंग किए हो या फिर और कुछ किए हो? Turning simply means the reduction of diameter. Okay, and अगर तुम थोड़ा सा क्या एक वो छोटा डायमीटर बनाए हो उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बनाए हो तो उसको बोलते हैं स्टेप टर्न, राइट? ये दोनों ही तुम काम किए हो, इसको छोड़ के और क्या और कुछ किए हो क्या? No. Let us understand what else can be done by using your lathe machine tool, right? So basically here you can see this portion. So obviously this is a cylindrical shaft. ये तुम्हारा एक cylindrical shaft है, उसको हम बहुत सारा ऑपरेशन किए, right? So this is known as your threading. Threading is what? External threading. हम external एरिया में जैसे कि तुम्हारा बोल्ट के ऊपर होता है, बोल्ट देखे हो ना, right? तो बोल्ट के ऊपर जो external threading होता है that can be done by using your lathe also, right? Next one is your parting. Okay, obviously threading जो तुम्हारा बनेगा उसको बनाने के लिए वही थ्रेडिंग टूल हम यूज करेंगे, राइट? मतलब दैट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो उसको थोड़ा डिजाइन अलग करेंगे, उसके बाद उसको एंड सम अरेंजमेंट्स आर आल्सो देयर, तो उसको यूज करके हम ये वाला ऑपरेशन करवा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज योर पार्टिंग. पार्टिंग सिंपली मींस देयर इज अ सिलिंड्रिकल शाफ्ट. ओके, हम क्या करेंगे, यहां पे कटिंग टूल होगा, इसको हम काटते काटते इसके अंदर घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला निकल जाएगा. पार्टिंग दिस सिमिलर टू योर कटिंग, राइट? तो जो हम काट के इसको सेपरेट कर देंगे तो वो वाला ऑपरेशन भी कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए अगेन क्या होगा, जो टूल हम यहाँ पे रखेंगे उसका डिजाइन थोड़ा अलग हो जाएगा, राइट? सो पार्टिंग हो सकता है.
स्टडी हो सकता है। देन दिस इज ऑब्वियसली टर्निंग, तुम्हें पता है ये क्या है। टर्निंग क्या है? द रिडक्शन ऑफ द टाइम, हम डायमीटर को रिडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे थोड़ा देखो, ये क्या है, कुछ एंगल में है, तो टूल का जैसा शेप होगा, सपोज दिस इज द राइट कट टूल, तो यहाँ से हम काटते काटते इधर ले रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल में रहेगा अकॉर्डिंग टू योर टूल। वैसे अगर इधर से काट काट के ले रहे हैं, तो अगर ये वाला टूल यूज कर रहे हैं, लेफ्ट कट टूल, राइट, सो विल बी हैविंग सम शेप समवट लाइक दिस। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट वन इज योर फेसिंग। फेसिंग मतलब देखो, हम ये जो टूल है इधर से प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, आगे से नीचे। मतलब सपोज ये वाला फेस को मुझे अच्छा से बनाना है, हम क्या करेंगे, टूल को ऐसे रखेंगे एंड इसको मूव करते करते इधर अंदर घुसे, राइट। सो फीड विल बी इन दिस डायरेक्शन नाउ, डेप्थ ऑफ कट विल बी इन दिस वे। गेटिंग माय पॉइंट? when we were talking about the turning, so what is the depth of cut in this direction, right, perpendicular to the axis. This is the cylinder and perpendicular to the axis our depth of cut was provided, right. So that now we are providing the feed along this particular direction, right. But when we want to do the facing operation, that simply means we want to remove some material from the face of the cylinder. In that case we have to provide the depth of cut along the direction of the left. इस डायरेक्शन में हम पूरा क्या करेंगे, इसका डेप्थ ऑफ कट देंगे, उसके बाद ये तुम्हारा कटिंग टूल ऐसा कुछ रहेगा, फिर इसको अंदर घुसाएंगे, राइट, अप टू द सेंटर पॉइंट विल बी टेकिंग, सो दैट कि द मटेरियल्स फ्रॉम द सरफेस, या फिर तुम्हारा जो होगा फेस होगा, वहां से तुम्हारा मटेरियल मूव हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन इज योर ऑब्वियसली दिस इज आल्सो टर्निंग, ओके। तो टर्निंग को यूज करने के लिए हम बहुत सारा टाइप का टूल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट कट टूल यूज किए थे, राइट कट टूल यूज किए थे, यहाँ पे सिर्फ हम कर्व कट यूज कर रहे हैं, तो कटिंग टूल के हिसाब से तुम्हारा टर्निंग बन जाएगा। देन नेक्स्ट वन जो टैपर टर्निंग या फिर टैपरिंग। टैपर शेप अगर हमको लाना है, टैपर समझ रहे हो, एक डायमीटर थोड़ा छोटा होगा, फिर डायमीटर बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, राइट। सो दैट कैन बी आल्सो डन इन केस ऑफ योर टर्निंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम कैसे करेंगे इसको, हम कटिंग टूल को ऐसे कुछ इंक्लाइन में रखेंगे, राइट। नाउ आई विल बी प्रोवाइडिंग द फीड अलोंग दिस पर्टिकुलर ऐसे कुछ, फिर और थोड़ा अंदर घुसाएंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर और थोड़ा घुसाएंगे, फिर काटेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द टैपर टर्निंग, टैपरिंग या फिर टैपर टर्निंग, ओके। नेक्स्ट थिंग इज योर नेकिंग और ग्रूविंग, ओके। ग्रूविंग किसको बोलते हैं, जैसे कि एट एनी सर्टेन क्रॉस सेक्शन we want to reduce the diameter of that particular shaft, जो भी शाफ्ट हमारे पास होगा किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में हम उसका डायमीटर रिड्यूस करते चलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, ग्रूविंग, ओके, या फिर नेकिंग बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज योर नर्लिंग। नर्लिंग के इज योर साइलेंस, दैट इज योर नर्लिंग। दैट सिंपली मींस तुम्हारा अगर लेज में देखे हो, वहां पे ऐसा कुछ शाफ्ट था जिसको होल्ड करने के लिए, होल्ड करके कटिंग टूल को रोटेट करना है, फिर कटिंग टूल को माउंट और माउंट किया हो, कटिंग टूल कहां पे रह जाता है, कटिंग टूल होल्डर राइट था, ठीक है, राइट। तो वो वाला जो होल्डर को हम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, नहीं निकाल सकते, वहां पे जब व्हाट्सएप जाना, जब देखना था, ओके। तो वहां पे जो है उसको पकड़ के रखने के लिए, हमारा ग्रिप को स्ट्रांग होने के लिए हम कुछ डेफिनेट शेप देते हैं, तो वो जो शेप बनेगा, दैट शेप विल बी प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ योर नर्लिंग, ओके। तो नर्लिंग टूल क्या है, सिंपली एक ऐसा टूल होगा, हम दिखाएंगे, आई थिंक आई डिड नॉट आर्ट दैट राइट, बट आज थोड़ा ज्यादा चेक कर लेंगे, ओके। एक सिलिंड्रिकल सर्कुलर रोलर टाइप का होगा, ओके, एंड हम अगर उसको टच करवाएंगे तो वो रोलर जो होगा वो घूमते रहेगा, क्योंकि तुम्हारा वर्कपीस घूम रहा है, तो उसके साथ कोई भी सिलेंडर को अटैच करेंगे तो वो भी घूमता रहेगा, राइट। लेकिन वो जो सिलेंडर के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ एक डेफिनेट शेप दिए होंगे, जो शेप दिए होंगे हम अगर उसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो वो वाला शेप हमारा वर्कपीस के ऊपर आ जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है क्या? इसको किसको समझ में आया? Okay, so क्या है, again I am repeating, so this is the cylinder and I have a tool, this tool is having some roller, एक टाइप का एक सिलेंडर का रोलर है छोटा सा, and उस रोलर के ऊपर हम कुछ शेप दिए हैं, राइट। अभी क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं और उसको लाके इसके साथ टच करा रहे हैं, and we are giving some amount of force, राइट। तो ये जो रोलर के ऊपर जो शेप बना होगा, जैसे कि डायमंड जैसा कुछ शेप हुआ है,
तो वो शेप को हम अगर इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो वहां पे वो वाला शेप बन जाएगा, राइट। तो उसको बोलते हैं क्या, नर्लिंग। सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेसेस, इन ऑल द प्रोसेसेस वी आर रिमूविंग सम ऑफ द मटेरियल्स। व्हाट इफ यू बी टॉकिंग अबाउट द नर्लिंग, देन नो मटेरियल इज गेटिंग रिमूव्ड। समझ में आ रहा है? तो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू योर फॉर्मिंग प्रोसेस, राइट। यहाँ पे कुछ भी मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है, लेकिन हम शेप चेंज कर देंगे इसका, राइट। नेक्स्ट वन इज योर, see you can see there is a tool, right। यहाँ पे ऐसा कुछ टूल है, right। this is your tool and this is the cylinder which I was saying about, right। तो ये वाला जो भी शेप होगा इसके ऊपर, ये जो सिलेंडर होगा उसके ऊपर ये वाला ये शेप आ जाएगा, राइट। देन हम अगर कहीं पे चाम्फरिंग करना चाहते हैं, ओके, थोड़ा सा सिलेंडर का डायमीटर को घटाना चाहते हैं, ओके, एंड उसको एक चाम्फरिंग या फिर फिलेटिंग, चाम्फरिंग मतलब ये तुम्हारा क्या सिलेंडर है, इसको एज को थोड़ा सा मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, राइट। चाम्फरिंग मीन्स थोड़ा सा थिकनेस घटा के उसके ऊपर एज, जो एज है उसको भी घटा दूंगा, राइट। दैट इज नोन एज चाम्फरिंग। फिलेटिंग मतलब कुछ एक कर्व जैसा बनाऊंगा उसको, ओके। देन आफ्टर दैट वी कैन ड्रिल by using your cutting tools या फिर drill bit, we can do the drilling operation in case of your lathe also। lathe के ऊपर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बेसिकली there is a tail stop, right। तो tail stop के ऊपर हम माउंट करेंगे क्या, हमारा जो drill bit होगा। तो cutting tool will be mounted over the your tail stop, right। and tail stop के ऊपर हमारा drill bit ऐसा माउंट हो गया, यहाँ पे तुम्हारा वर्कपीस था and this is rotating। अभी this will be stationary, cutting tool will be stationary and this workpiece is rotating। now I'll be giving feed to the particular tail stop। तो ये इधर इधर मतलब घुसते जाएगा and if your drill bit will be entering into the workpiece, obviously there will be, okay। then if we can do the drilling, then there will be a hole will be produced in the workpiece and in that particular workpiece again we can do the internal, जो ड्रिल होल बन गया उसके ऊपर हम इंटरनल थ्रेडिंग भी बना सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा नॉट के अंदर होता है, राइट। नॉट के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं इंटरनल थ्रेडिंग, बोल्ट के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं। सो ऑल दीस प्रोसेसेस कैन बी डन बाय यूजिंग योर व्हाट, राइट, ओके। So here you can see basically this is the cylindrical workpiece and this is the cutting tool, right। so you are giving some amount of feed in this particular direction, right। sorry, this is the depth of cut, right। ये जो जितना distance अंदर घुसेगा that will be your depth of cut। now I am providing this particular feed इधर से, here it is saying that continuous feed, continuously we need to supply some amount of feed, right। so workpiece is rotating in this particular direction, ये direction में, right, and depth of cut is provided in this particular direction and cutting tool is moving in this direction, right। and जो भी मैं बोला हूं उसको थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेना, उसको पढ़ लेना, right। next one is your milling machine, okay। process is your milling and the machine tool which is used, that is milling tool, milling machine tool, right। so here you can see this is the milling machine। देखियो क्या हमारा वर्कशॉप के अंदर है क्या, वर्कपीस के अंदर है, वर्कपीस क्या वर्कशॉप के अंदर है, राइट साइड, हाँ। और में देख लेना एक मिलिंग मशीन है इस टाइप का, ओके। तो यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, एक हार्ड सरफेस प्रोड्यूस करना है, देन दैट विल बी यूज्ड बाय द मिलिंग ऑपरेशन। सपोज आई एम सेइंग दिस इज एनी वर्कपीस, नाउ आई वांट टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस, इसके ऊपर से मुझे मटेरियल रिमूव करना है, तो हम मिलिंग यूज करेंगे। तो मिलिंग का जो कटर होगा इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ टिप्स, लाइक समवॉट इट विल बी लुकिंग लाइक ए गियर, गियर जैसा दिख सकता है, राइट। गियर देखे हो, कौन कौन देखा है, बुरा दो गियर, कौन कौन देखे हो, ओके। तो तुम नहीं देखे, ओके। सो गियर जैसा भी तुम्हारा क्या कटिंग टूल हो सकता है, आई एम सेइंग हो सकता है, मतलब उस टाइप का छोड़ के और भी बहुत सारा, राइट। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन्स आर अवेलेबल, बेसिकली टू टाइप्स, और भी है लेकिन मोस्टली टू टाइप्स, ओके। जिसमें तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग होता है और एक वर्टिकल मिलिंग,
ओके, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल वन, सो योर दिस इज द वर्कपीस बेड, इसके ऊपर तुम वर्कपीस को रखोगे, राइट, एंड यहाँ पे तुम्हारा कटिंग टूल माउंट होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कटिंग टूल माउंट करेंगे तो इस टाइप का एक सिलिंड्रिकल माउंट होगा, समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं आर्बर, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द टूल होल्डर, इसके ऊपर मुझे कटिंग टूल माउंट करना है, तो यहाँ पे क्या इस टाइप का एक सिलिंड्रिकल टूल माउंट करेंगे, राइट। सो दिस टूल इज नोन एज योर हॉरिजॉन्टल, ओके। सो ये एक्चुअली जहां पे कटिंग टूल है वो हॉरिजॉन्टली रहेगा, मतलब रुका है, राइट। तो दिस विल बी रोटेटेड समवॉट लाइक दिस, इस टाइप का ये रोटेट करेगा, राइट। एंड सो यहाँ पे इसको अगर हम नीचे लाएंगे एंड नीचे लाके फिर बेड को हम यहाँ पे मूव कराएंगे, राइट। तो प्रीवियस केस में हम क्या कर रहे थे, तुम्हारा कटिंग टूल तो फिक्स था, वापस को मूव कर रहा था, वैसे ही इस केस में भी तुम्हारा क्या कटिंग टूल ऊपर फिक्स रहेगा एंड रोटेट करता रहेगा, right, cutting tool will be rotating and here belt will your workpiece will be mounted and this bed will be moving, right। अगर ये वाला बेड को मूव करेंगे ये रोटेट करता हुआ तो यहाँ पे कट होगा, right। so this is known as your horizontal milling machine and here you can see this is the vertical milling machine। vertical milling machine simply means जैसा कि तुम्हारा ड्रिल बिट जैसा कर रहे हो, देखे हो ना, वहाँ पे छोटा सा हम ड्रिल बिट लगाते हैं, हम उसको यहाँ पे अगर कोई मटेरियल होगा उसके अंदर घुसा देते हैं, राइट। सिमिलरली हियर आल्सो विल बी अटैचिंग सम वर्टिकल योर मिलिंग कटिंग टूल, तो यहाँ पे हम कटिंग टूल अटैच करेंगे, देन वर्कपीस इधर घुस रहेगा, फिर अगर इधर कराना है तो ये कटिंग होगा, राइट। अगेन हियर कटिंग टूल विल बी रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ रोटेट कर रहा है, राइट। प्रीवियस केस में ऐसा कुछ रोटेट कर रहा था, अभी ऐसा कुछ रोटेट करेगा, तो कटिंग टूल का मूवमेंट इधर इस तरह हो सकता है, ऊपर नीचे होगा एंड तुम्हारा जो वर्कपीस ऐसे आगे पीछे हो सकता है या फिर इधर। अगेन देयर आर थ्री मूवमेंट्स, राइट। कटिंग टूल का इस टाइप का अबाउट y एक्सिस वो रोटेट कर रहा है, राइट, बट इफ यू बी टॉकिंग अबाउट द बेड इट इज डूइंग द ट्रांसलेशन मोशन along x एंड डूइंग द ट्रांसलेशन मोशन along z, कोई दिक्कत, राइट। सो दिस इज योर वर्टिकल मिलिंग मशीन। So vertical या फिर horizontal that will be dependent on the position of the cutting tool। कटिंग टूल कैसे रहा है उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे तुम्हारा कौन सा टाइप का मिलिंग, राइट। Then here you can see different types of horizontal cutting tools, right। So these are the cutting tools, right। Here we can see this is the tool which will be useful for the cutting action, right। All these are the horizontal या फिर vertical, ये horizontal होगा या फिर vertical, horizontal, right। So because all these things are looking like a cylinder and obviously all the workpieces will be all the cutting tools will be cylinder, but here this will be mounted over any horizontal shaft, कोई भी horizontal shaft होगा उसके ऊपर ही हम उसको माउंट करेंगे, right। So all these are the your horizontal cutting tools, right। and here you can see how it is removing this particular material, right। so this is the cutting tool and there are number of cutting tools are present, बहुत सारा cutting tool है, एक बार एक काट रहा है फिर continuously it is cutting like this, right। now here also you can see दिख रहा है, and these are the vertical cutting tools, right। जैसे कि ड्रिल बिट जैसा है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा हो, राइट। सो these are the what, अगेन ड्रिल बिट के ऊपर तुम्हारा दो पॉइंट होता है कटिंग करने के लिए, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट होते हैं, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर ड्रिल बिट एंड दिस मिलिंग कटर, देख के पता चल जाए यहाँ पे क्या लिखा था, सॉरी these are the vertical, again there is typing error, ये टाइपिंग एरर क्यों होता है, एनी रीजन है, ऑटो करेक्ट नहीं, क्योंकि वहां से कॉपी करके लाके पेस्ट करते हैं लेकिन एडिट करने के लिए भूल जाते हैं, ओके। ओके, सो जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे अगेन पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो पूछना। एंड नेक्स्ट वन इज योर ड्रिलिंग, ओके। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर टर्निंग या फिर यूज ऑफ योर लेथ मशीन टूल, देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मिलिंग मशीन, राइट।
ओके, देन नेक्स्ट वन इज ड्रिलिंग मशीन। ऐसा ड्रिल कहीं पे देखे हो क्या? देखे हो गन है? अच्छा, ओके। सो अगेन इट इज क्वाइट सिमिलर टू योर मिलिंग। मिलिंग में जैसा ही है वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दिस बेड विल बी नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा होगा, एक ही जगह में फिक्स होगा। लेकिन तुम्हारा मिलिंग मशीन में क्या हो रहा था, बेड मूव कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे हम मूव करके एक पार्ट सरफेस नहीं बनाने वाले हैं, हम सिर्फ एक होल करेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू द साइजेस ऑफ द ड्रिल बिट्स वी कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्स, राइट। साइज के हिसाब से हमें होल करना है, ओके। नॉर्मली हमारे पास हैंड ड्रिल होता है, देखिए जैसे कि हमारा वॉल में होल करते हैं, वैसा ही वो भी एक ड्रिलिंग ऑपरेशन है, ये भी एक ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो इसको हम यूज कर रहे हैं बेसिकली मेटल के अंदर ड्रिल करने के, राइट। तो उसके हिसाब से ड्रिल बिट अलग अलग लगेंगे, राइट। अगर वॉल के अंदर जो ड्रिल बिट यूज कर रहे हैं उसको यूज करके तो हम मेटल को कट नहीं सकते ना, क्योंकि हम अगेन पहला वाला जो हम पढ़े थे, टूल मस्ट बी हार्डर देन दैट ऑफ द योर वर्कपीस, राइट। तो सेम ही फंक्शन सेम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा वर्कपीस स्टेशनरी हो गया, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है किसका, ये जो कटिंग टूल का, एंड ये तुम्हारा ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तुम्हारा जो ड्रिल या फिर जो तुम्हारा जहाँ पे लगा हुआ है ड्रिल टूल होल्डर उसको बोलते हैं, वो ऊपर जाता है, ओके। दो मूवमेंट इज पॉसिबल हियर, ओके। अगेन दिस वर्कपीस या फिर दिस पर्टिकुलर बेड आल्सो कैन मूव अप एंड डाउन, राइट। जो बेड है, बेड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो सकता, राइट। ट्रांसलेशन या फिर ये टाइप का मोशन नहीं, लेकिन ऊपर नीचे किया जा सकता है। Again, there are different types of drill bits you can use according to the dimension, according to the material. We'll be using different types of drill bits. Okay, and drill bit is basically 2-point cutting tool. दोनों ही साइड से वो कटिंग करना होगा, right? Here you can see how drilling is happening. Your material will be going out through this particular section. जो एरिया हम यहाँ पे छोड़े होंगे उसके अंदर तुम्हारा चिप्स निकलेंगे, राइट। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो, राइट। ओके, सो ये क्या है, ये है क्या तुम्हारा वर्कशॉप में है? Okay, basically this will be useful. This is your table grinder बोलते हैं उसको, right? So this will be useful for setting the cutting tools, right? तो जो cutting tool तुम्हारा बनेगा उसको सेट करने के लिए अगर उसका wear and tear हो गया, उसको cutting tool को वहाँ से निकालेंगे, फिर उसको सेट करेंगे, right? So this is basically table grinder, right? So here you can see the rotating part. This is your grinding wheel, right? So this is the wheel which will be rotating with a high torque. High torque के साथ वो rotate कर रहा होगा, okay? High torque and high speed with a high velocity it will be rotating and with a high torque. इसे हम पकड़ के उसको रख नहीं सकते, high torque मतलब समझ रहे हो ना, right? So high torque will be there and high speed will be there, right? So with high power it will be rotating and will be you can set our cutting. Okay, so basically in case of your grinding operations we will be getting the more grinding products. Milling, cutting जो भी है उसको फिर हमको हर एक प्रोसेस के बाद ग्राइंडिंग करना है. So grinding basically your finishing operation, right? It will be reducing less thickness. तो thickness बहुत कम घटाएगा लेकिन जो surface finish करेगा that will be best one, right? So to do that we are using this particular grinding wheels. Those grinding wheels are basically prepared by the method of your powder metallurgy. Okay, जो कि हम नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे भी नहीं. बेसिकली वो क्या होता है, हम पावर करते हुआ मैकेनिकल जब बच्चे पढ़ेंगे बात, अभी हम नहीं पढ़े. बेसिकली आइडिया एक जैसे कहो क्योंकि जो भी हमारा चिप बनता है, राइट, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. ओके, तो मेटल का चीज बनेगा उसको हम थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा पाउडर के फॉर्म में बना देंगे, फिर उसको कंबाइन करके ऐड करके फिर इसको एक प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट. जैसे कि तुम्हारा क्या सैंड पेपर होता है, बालिका होता है, राइट. सैंड पेपर के ऊपर जैसा ग्रेन्स छोटे छोटे लगे होते हैं वैसा ही हम एक व्हील बनाएंगे जिसके ऊपर वैसा ही सब
right? So obviously all these grains, all these abrasive particles will be used as a category, right? तो अगर उसका डायमेंशन बहुत छोटा है तो वो जिसके साथ कांटेक्ट में आएगा वो कितना मेटेरियल रिमूव करेगा, उतना छोटा ही करेगा, राइट? लेकिन देयर आर n number of particles which is removing the material from the workpiece, right? So that is why we'll be getting better surface finish by using this particular machine. So this is a small scale, and there are number of bigger what machines are also available for the grinding. Okay, surface grinding can be done, right? कोई भी एक surface लो उसको grind करो, लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते है ना, यहाँ पे टूल को हम नहीं रख सकते या फिर वर्कपीस को नहीं रख सकते। सिंपली अगर ऐसा कुछ हम हाथ में पकड़ के टूल होल्डर को ना यूज करके करेंगे तो दैट कैन बी डन। वर्कपीस को यहाँ पे हम कहीं पे फिक्स नहीं कर सकते, बट दैट कैन बी फिक्स्ड ओवर देयर, राइट? बिकॉज your grinding wheel will be rotating with a high speed and high torque। मैं बोल रहा हूँ हाई पावर के साथ रोटेट कर रहा हूँ, अगर उसको फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेटल जो ड्यू टू फ्रिक्शन इट विल बी गोइंग आउट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑल द वर्कपीसेस विल बी फिक्स्ड, अच्छे से उसको फिक्स करना होगा। ये जो फिक्स करने के लिए जो भी डिवाइसेस है आपको से भी बताया, वाइस नाम सुना हो, बेंच वाइस, तो हमको वाइस सिर्फ पता है। Excluding vice, there are many other devices are also available which will be used to hold the workpieces। वो भी एक बहुत छोटा काम नहीं है, इसको पकड़ के रखना वो भी एक बहुत बड़ा है, right? So in grinding basically that workpieces will be fixed with tight, मतलब अच्छे से टाइट करके उसको फिक्स करना है, right? So there are again different types of workpiece holding devices। So here you can see one type of grinding is happening, राइट? तो यहाँ पे जो ग्राइंडिंग यह है ग्राइंडिंग व्हील है वो रोटेट कर रहा है, एंड अगेन द वर्कपीस इज आल्सो रोटेटिंग, वर्कपीस भी रोटेट कर रहा है एंड ग्राइंडिंग व्हील इज आल्सो रोटेटिंग। एंड यहाँ पे हम हर एक मशीनिंग प्रोसेस में कूलेंट यूज किया जाएगा क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हीट, राइट? जो भी टर्निंग कर रहे हो वहां पे भी हमको पानी देना चाहिए, जो भी तुम काट रहे हो by using the hacksaw also should use liquid water, उसको बोलते हैं कूलेंट। वाटर के साथ सिर्फ वाटर को हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ कुछ ऑयल्स वगैरह मिला के हम उसको यूज करते हैं। ओके, कूलेंट का दो काम होता है, राइट? और अच्छे हो स्केल लगे आपको स्केल ओके। तो बेसिकली हम जब भी काट रहे हैं थोड़ा सा पानी देंगे तो क्या बी इजी फॉर अस टू काट, ऐसे नहीं कि वो जो है इसलिए उसको थोड़ा सॉफ्ट करा देगा पानी, ऐसे हो सकता है क्या? पानी देने से थोड़ा मटेरियल हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं हो, लेकिन जो फ्रिक्शन हो रहा है, जो हीट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, उसको थोड़ा सा डिक्रीज करें। फर्स्ट फंक्शन इज इट विल बी इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर रेट, वाटर कूल कराएंगे तो हीट थोड़ा बाहर चला जाएगा, राइट? अनदर थिंग इज दैट इट विल बी टेकिंग आवर चिप्स व्हिच विल बी entrapped इन द कटिंग, कटिंग के ऊपर जो अगर चिप्स रह गए होंगे उसको बाहर लेके दो काम, ओके। देन अगेन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट वन इज योर बोरिंग, जैसे कि अभी बोर हो गए क्या? यस सर, क्या करें, ये तो थ्योरी है और होना ही है, राइट? काइंड let me complete this one. Okay, boring simply means we want to increase the diameter of any hole, okay? किसी भी एक होल होगा उसका अगर हम डायमीटर को इंक्रीज करना चाहें then that can be done by the help of boring, okay? तो कोई भी एक होल है, suppose I want to get a hole of 50 mm, right? तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि according to our required hole size I'll be having same type of drill bit, तो drill bit ऐसे नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, ड्रिल बिट सपोज मुझे 20 mm का है, 20 mm का ड्रिल बिट है तो 20 mm को यूज करके हम होल बना देंगे, फिर उसको एनलार्ज करते करते हम क्या करेंगे 50 mm तक ले जाएंगे। दैट प्रोसेस इज बोरिंग। बोरिंग ऐसे हो सकता है सिर्फ हम डायमीटर को इंक्रीज करेंगे, ऐसे हो सकता है तुम्हारा कुछ शेप देंगे, जैसे कि तुम्हारा क्या स्क्रू देखे हो, स्क्रू, तो जहां पे हम स्क्रू लगाते हैं तो उसका क्या थोड़ा सा चाफरिंग बन के बना हुआ, तो वो टाइप का होल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बोरिंग यूज करेंगे।
उसको काउंटर बोरिंग, काउंटर सीटिंग ऐसे कुछ टर्म है, उसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं। सिंपली बोरिंग का मतलब ये समझो टू एनलार्ज द होल ऑफ, एनलार्ज द साइज ऑफ द होल। जो होल बना होगा पहले से हम उसका साइज बढ़ाएंगे। अगर कोई भी होल नहीं बना है देन बोरिंग इज नॉट यूज्ड। बोरिंग नाम सुने हो क्या और कोई पे? पानी, हाँ वो वाला बोरिंग में बोला, राइट। वहां पे जो काम है यहाँ पे पहले कोई एक ड्रिल बिट गया होगा, वो रोटेट करके माटी निकल रहा है, उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स करते करते दैट इज द सेम प्रोसेस। ओके, उसको पढ़ लेना, देन इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।